قبضہ مافیا کے خلاف بڑے شہر میں بڑے آپریشن کا فیصلہ۔ آپریشن پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں ہوگا۔ محکمہ کچی آبادی بھی شامل ہوگا۔ محکمہ قانون تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر بلدیات سندھ کی زیر صدارت قبضہ مافیا کے خلاف اجلاس۔ صوبائی وزیر قانون ضیاء الانچار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت۔ ناصر شاہ کا قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا عندیہ۔ تو اپڈیٹ کریں آپ کو، قبضہ مافیا کے خلاف بڑے شہر میں بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپریشن پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں ہوگا۔ آئی جی سندھ سے سیکورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن کے 4 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد کی صدر سیکورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن منیر احمد نے قیادت کی۔ ملاقات میں وفد نے امن و امان اور سیکورٹی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جاوید عالم اوڈھو کا اسلحے کی نمائش روکنے، گارڈز کی تربیت پر زور۔ بولے سندھ پولیس اور سیکورٹی ایجنسیز میں مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ شہریوں کو جلد نظر آئے گا نیا کراچی۔ شہر میں خوبصورتی اور ترقی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ بارشوں سے پہلے شہر سنوارنے کا مشن کام بھی ہوگا اور خوبصورتی بھی۔ میئر کراچی کا سخت ایکشن، 30 جون کی ڈیڈ لائن فکس، بڑی سڑکوں پر کام ترجیح قرار۔ چھٹی کا دن بھی نہیں بچے گا، کام بلا تعطل جاری رکھنے کا حکم۔ شہر میں بیوٹیفیکیشن زونز قائم کرنے کی منظوری۔ کہا شہریوں کو مزید مشکلات میں نہیں ڈال سکتے، اب صرف عملی کام چاہیے۔ فنڈز موجود ہیں، کام نہیں رکنا چاہیے۔ حکومت سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہوگا اپ گریڈ، عوام کو ملیں گی علاج کی بہتر سہولیات۔ پولیو فری سندھ کا خواب، ویکسینیشن ہدف 95% مقرر۔ ٹی بی اور پولیو کے خلاف بڑا آپریشن، امریکہ سے اشتراک طے۔ وباؤں سے نمٹنے کے لیے جدید لیبارٹری اور ڈیٹا سینٹر قائم ہوگا۔ محکمہ صحت اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایم او یو کی سندھ کابینہ کی مشروط منظوری۔ فنڈز اور PC1 لازم قرار۔ 2030 تک صحت کے اعشاریے بہتر بنانے کا ہدف مقرر۔ پبلک اور پرائیویٹ شراکت داری کے ذریعے سندھ کی سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 52واں اجلاس ہوا۔ PPP پالیسی بورڈ نے انفراسٹرکچر، تعلیم، صنعتی ترقی کے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے SITE منصوبہ متعارف کرایا جائے گا۔ سندھ بھر میں وہیکل فٹنس انسپیکشن سینٹرز قائم ہوں گے۔ بریفنگ دی، خراب گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی اور حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ 21 ممالک کے 139 منصوبوں میں تمام 4 منصوبے کامیاب قرار پائے۔ بائک چلانا کوئی مشکل نہیں، میں نے سگنل کا بھی خیال کیا۔ میئر کراچی الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی پہنچے۔ میں ایک میٹنگ میں اسمبلی آیا ہوں، بچپن میں سائیکل بھی چلاتا رہا ہوں۔ تو آپ کو بتائیں کہ بائک چلانا کوئی مشکل نہیں، میں نے سگنل کا بھی خیال کیا۔ میئر کراچی الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی پہنچے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں ایک میٹنگ میں اسمبلی آیا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب جو ہے نا لیکن اب پتہ نہیں اسٹارٹ ہوگا نہیں، اسپیڈ ذرا دکھائیں میئر صاحب آ رہا۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ کئی برسوں سے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہے، جبکہ شدید گرمی میں مہنگے ٹینکر خریدنا بھی عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے سے روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ دعا شکیل پراچا کی رپورٹ۔ شدید گرمی، خشک نلکے اور پریشان شہری شاہ فیصل ٹاؤن میں پانی کا بحران سنگین، عوام مہنگے ٹینکرز خریدنے پر مجبور۔ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی پانی کی قلت نے بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں کئی سالوں سے پانی کی فراہمی متاثر ہے، جس کے باعث مکین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھریلو استعمال، پینے اور صفائی ستھرائی کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں، جبکہ خواتین، بچے اور بزرگ شدید اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق پانی نہ ملنے کے باعث انہیں مہنگے داموں واٹر ٹینکر خریدنا پڑ رہے ہیں، جبکہ ٹینکر مافیا نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے متوسط طبقے کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ مختلف اسکول ہیں، مدرسے ہیں، لیکن پانی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہم جب سے رہ رہے ہیں ٹینکر پہ ہی چل رہے ہیں، یا اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو بورنگ کروا لیتا ہے، اس طرح ہی بس گزارا ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری طور
पर पानी की फराहमी बहाल करें ताकि आवाम को इस संगीन सूरत हाल से निजात मिल सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की लोड शेडिंग और कंप्रेशर ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सुबह शाम गैस की बंदिश के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि महंगाई के इस दौर में होटल्स और सिलेंडर्स का खर्च आवाम पर इजाफी बोझ बन चुका है। मजीद जानिए दुआ शकील पराचा की इस रिपोर्ट में। गैस गायब, चूल्हे ठंडे, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के शहरी परेशान। लोड शेडिंग और कंप्रेशर से मुश्किलात बढ़ा दी। कोरंगी के सन्नती इलाके में गैस की तवील लोड शेडिंग और कंप्रेशर शहरियों के लिए आजाद बन गया। इलाका मकीनों के मुताबिक कई घंटे गैस बंद रहती है, जबकि गैस आने पर भी प्रेशर इतना कम होता है कि चूल्हे सही तरह नहीं जल पाते। शहरियों का कहना है कि सुबह बच्चों को स्कूल और बड़ों को दफातर भेजने के वक्त गैस गायब होती है, जिसके बायस नाश्ता तैयार करना मुश्किल हो जाता है, जबकि शाम के औकात में खाना पकाने में भी शदीद दुश्वारी पेश आती है। बेटी जो है ना कॉलेज जाती है या यूनिवर्सिटी जाती है, तो उस वक्त ये गैस हमारा बंद होता है। सुबह 7:30-7 बजे तक, यानी 8 पौने 8 बजे तक बच्चे तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुश्किलात ये है कि ना तो बच्चों को रोटियां बना के दे सकते हैं, ना हम नाश्ता बना के दे सकते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक बार बार गैस बंद होने के बायस इन्हें होटलों और बाजार के खानों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, जिससे अखराजात में इजाफा हो रहा है। कहीं शहरी मुतबादिल के तौर पर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर महंगे सिलेंडर्स खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। गैस तो आ ही नहीं रहा, दिन रात नहीं आ रहा है। हम तो ये हमारा घर है 105 नंबर और यहाँ तो गैस का है ही नहीं, मतलब कोई निजाम। वही तब सिलेंडर भर भर के ला रहे हैं, महंगी गैस खरीद रहे हैं, वहाँ पैसा नहीं है आवाम के पास, किस तरह करेगा। आवाम ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला फौरी हल किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। शहर में ग्रीन स्पेसेस ना होने के बराबर हैं, जबकि कंक्रीट और सीमेंट से बनी इमारतें और सड़कें गर्मी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। माहिरीन माहौलियात क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मेरे ख्याल में पिछले साल में भी 40+ हुआ था, ऐसा इतना ठंडा भी नहीं था। अच्छा, तो मेन वजह क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके लिए सिटी को, शहर को कूलिंग प्लान बनाना है। आज हमारे यहाँ उसके ऊपर मीटिंग भी है बाद में। मेन उसका मकसद ये है कि शहर को ठंडा करना है इस गर्मी में। उसके लिए आपको जगह जगह कूलिंग सेंटर बनाने हैं, यानी ऐसे मकामात हर इलाके में हों जो कि ठंडे हों, जहाँ पे कि वो बीमार लोग वहाँ पे आके गर्मी का टाइम गुजार सकें। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। नुमाइश चौरंगी पर भी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए चीपा फाउंडेशन का कैंप लगा दिया गया है। कैंप में ठंडा पानी, मशरूबात दस्तयाब हैं। शदीद गर्मी में घरों से काम से निकलने वाले शहरी भी इस कैंप से मुस्तफीद हो रहे हैं। देखिए मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। शहर कायद में गर्मी से बचाव के लिए हीट स्ट्रोक कैंप कायम। नुमाइश चौरंगी पर चीपा फाउंडेशन की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया। हीट स्ट्रोक कैंप में शहरियों के लिए ठंडा पानी और मशरूबात तैयार किया गया। चीपा रजाकार का कहना है शदीद गर्मी में जो शहरी घरों से अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं वो इस कैंप से मुस्तफीद हो रहे हैं। चीपा फाउंडेशन और चीपा साहब की आदात के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी हमने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंटिन्यू यहाँ पे ठंडा पानी और मशरूबात, उसके अलावा दिन को हम यहाँ पे पानी का स्प्रे भी करते हैं और ये इसी तरह हमारा जारी रहेगा जब तक गर्मी रहेगी। शहरी कहते हैं कि फलाई इदारों की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप लगाना एक नेकी का काम है। कराची में पिछले पूरे हफ्ते से बहुत मौसम गर्म है, तो ये चीपा फाउंडेशन ने माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो पब्लिक के लिए ठंडे पानी और शरबत का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह ताला जो है जज़ा खैर अता फरमाए। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, बहुत शदीद गर्मी थी, तो हमने भी जो यहाँ पर जो है शरबत गिलास किया। अल्लाह ताला इनको और ये जो लोग सारी मेहनत कर रहे हैं इनको अपने शायन जान इसका अजर अता फरमाए। सिंध हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी शहर के बेशतर मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, कराची पर सूरज आग बरसाने लगा है। शदीद गर्मी में फलाही तंजीमें मैदान में आ गईं। शाहराहों, बस स्टॉप्स और अवामी मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। ठंडा पानी, मशरूबात और फौरी रिलीफ ने शहरियों को कुछ सुकून दे दिया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में।
हीट स्ट्रोक कैंप्स, शहरियों का रश, ठंडा पानी, फौरी रिलीफ। शहर कायद में सूरज की तपिश बढ़ते ही फलाही तंजीमें भी मुतहरिक। गर्मी की शिद्दत से निढाल शहरियों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों, चौराहों और बस स्टॉप्स पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए। सदर में कायम यूथ फाउंडेशन के हीट स्ट्रोक कैंप पर भी शहरियों का गैर मामूली रश, जहाँ रज़ाकार मुसलसल लोगों को पानी पिलाकर और गर्मी से बचने के मशवरे देने में मसरूफ है। हम सुबह 11 बजे से लगाए, अभी तक हमारी कोई 20 से 21 बोतलें हैं जो खत्म हो चुकी हैं। बोल्टन मार्केट ताजुर इत्तेहाद एसोसिएशन और खारादर पुलिस की जानिब से हीट वेव कैंप कायम किया गया, जहां शहरियों को ठंडे मशरूबात पिलाने के साथ साथ कुल्फियां भी तकसीम की गई। मौसम गर्म है तो ये चीपा फाउंडेशन ने माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो पब्लिक के लिए ठंडे पानी और शरबत का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, बहुत शदीद गर्मी थी, तो हमने भी जो यहाँ पर जो है शरबत गिलास किया। शदीद गर्मी में जहाँ शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं ये हीट स्ट्रोक कैंप लोगों के लिए फौरी रिलीफ का जरिया बन रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद हमाद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। कि पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत 415 रुपये फी लीटर तक जाने का इम्कान है। पेट्रोल 414 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है, जबकि हतमी मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में मजीद इजाफे का भी खदशा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत 415 रुपये फी लीटर तक जाने का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की 414 रुपये फी लीटर तक कीमत होने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में मजीद इजाफे का भी खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डीजल की कीमत 415 रुपये, जबकि पेट्रोल 414 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। हतमी मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हतमी मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई में मजीद इजाफे का भी खदशा है। तो अपडेट करें, आपको पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइए क्या अपडेट्स हैं। जी देखा जाए, आज भी मार्केट में जो खाम तेल और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का जो मौजूदा रेट है, उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपये 92 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ है। साथ ही डीजल की कीमत में 15 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ है। अगर ये मंजूरी होती तो डीजल की कीमत जो है वो बढ़कर 415 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है। साथ ही पेट्रोल की कीमत भी जो 400 रुपये वो बढ़कर 414 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, सिंध असम्बली इजलास के हवाले से सिंध ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन तरमीमी बिल और सिंध डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बिल मंजूर। गद्दागरों के खिलाफ कार्रवाई की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का शोर शराबा इजलास में मार्का हक की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश और शुदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। आदिल जमाली की रिपोर्ट। सिंध असम्बली इजलास सिंध ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन तरमीमी बिल और सिंध डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बिल मंजूर। गद्दागरों के खिलाफ कार्रवाई की अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। पैनल ऑफ चेयरपर्सन रिहाना लगारी की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ अरकान ने मौरका हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और फातिह ख्वानी की। अफवाज पाकिस्तान जी हिफाजत फरमा, पाकिस्तान जी सरहदों जी हिफाजत फरमा, पाकिस्तान जी अवाम जी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐवान में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए MQM के आमिर सिद्दीकी की तहरीक अल्तवा की मुखालफत। वजीर कानून जिया लंजार बोले, ये फौरी हल होने जैसा अवामी नौयत का मसला नहीं, जिसके बाद चेयरपर्सन ने तहरीक अल्तवा मुस्तरद कर दी। सिग्नल्स पर भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद और मुताल्लिका इदारों की मुमकिना गफलत में इस ऐवान की तवज्जो शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स और चौराहों पर भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद की जानिब दिलवाना चाहता हूँ, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नजर नहीं आ रही और सूरत हाल मुसलसल काबू से बाहर
होती जा रही है, जिससे सिंध पुलिस समेत मुताल्लिका इदारों की गफलत और मुमकिना सरपरस्ती के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो रहे हैं। मैं मुताल्लिका हुक्काम को फौरी हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करता हूँ ताकि मामले की तहकीकात की जाए, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और कानून पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। रूल 88B को, क्योंकि इमीडिएट ये मैटर नहीं है और इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है। इजलास में गवर्नर सिंध की जानिब से मंजूर करदा बिलों को पढ़कर सुनाया गया। ऐवान में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर से तरमीमी बिल भी मंजूर। बिल पेश होते वक्त जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक शोर शराबा करते रहे। फारूक साहब, अगर कोई रिजर्वेशन हैं तो मिनिस्टर साहब से मिल लीजिएगा आप। ना कुछ नहीं, अभी पास होने दें, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं कर सकते। खिलास भाई, आई रिक्वेस्ट यू, आप इसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, आप इसमें आप पास होने दें। आपको कोई रिजर्वेशन है? पैनल ऑफ शेयर ने सिंध असेंबली का इजलास पीर की दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।